स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का हमारा ये 13वां सत्र है संडेज विद योगीराज का। और एक बार फिर से हम योग सूत्र के अध्ययन के लिए आदरणीय गुरुवर के साथ इस मंगल वेला में जुड़ चुके हैं। और मुझे पता है कि पूरे सप्ताह के बाद लोगों की जिज्ञासाएं योग सूत्र को पढ़ने की और भी अत्यधिक बढ़ जाती है। कई सारे प्रश्न भी होते हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। इवन ईमेल के माध्यम से रितान्वेशी के पास भी प्रश्न पहुंचते हैं, गुरुजी के पास भी प्रश्न आते हैं। तो एक बार फिर से उन सभी को लेकर के हम आज पुनः उपस्थित हैं आज के सत्र में। तो मैं आदरणीय डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस सत्र की शुरुआत करें। आदरणीय गुरुदेव। धन्यवाद रोशन। आप सभी लोगों का अभिनंदन वंदन, स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज मैं पहले कुछ प्रश्नों को लूंगा जो कि बहुत दिन से लोगों ने पूछे हैं। उसके बाद आज का पाठ आरंभ मैं करूंगा। पर प्रश्नों से भी पहले थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम लोग साधना करेंगे। Today I wanna take some questions raised by you from last few weeks, and then we will come to the topic. So before we go to question answers, just have some 5 minutes of sadhana. Sit in a comfortable meditative posture. Make yourself completely still and calm without movement. Become aware of the whole body from all around. Come to your breath, watch your rhythm of the breath. शरीर को बिल्कुल स्थिर करने के बाद श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। पुनः हम लोग इंद्रियों पर ध्यान देंगे। एक एक करके सभी इंद्रियों पर अपनी सजगता को ले जाएंगे। Now we focus on our sense organs. Sense of smell, sense of taste, sense of vision, sense of touch, and listening sense. Now switch to your mind. Watch what are the thoughts running in your mind. इंद्रियों के बाद मन को देखें, किस प्रकार के विचार आपके अंदर हो रहे हैं। एक दृष्टा की भांति अपने विचारों को देखें। अपने विचारों का विश्लेषण करें और पता लगाएं कि किस प्रकार की भावना इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्षण में आपके भीतर है। Now analyze your thoughts and try to find out what type of emotions is there in the present moment. You can take last 10 to 20 minutes of thoughts, remember it, and just check what type of emotions is there present inside you. शरीर, श्वास, इंद्रिय, मन और भावना, ये 5 अवयव जिसको आपने स्पर्श किया है अभी अभी। उसके पश्चात हम लोग एकाग्रता की ओर जाएंगे। The 5 basic ingredients you touch in the meditation
the physical body, the breath, the sense organs, the mind, and the emotions. Now we move to the concentration. Focus on your eyebrow center. अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लाइए, दोनों भाव के बीच, और वहां एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना कीजिए. विजुलाइज अ कैंडल फ्लेम. Now, with this visualization, we will chant 3 Om and Shanti Path after me. लंबी गहरी श्वास लीजिए. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. Now rub your palms and place your palms over your eyes. दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखें. धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए. आप लोग का पुनः स्वागत है. और आज हम शुरुआत करने से पहले कुछ प्रश्नों को लेंगे. और सबसे पहले हम प्रश्नों में मीनल जी का प्रश्न लेंगे. मीनल have asked few questions few weeks back and I couldn't answer, but today I tried to the answers whatever I remember. The question is, does body listen to what we speak or think? How can I control my speech? एक क्वेश्चन मीनल जी का है और उन्होंने पूछा है कि क्या हमारा शरीर हमारी बातों को सुनता है. Yes, the body is not different from your mind. Mind is the subtle form of your body, or vice versa you can say the body is the gross form of your mind. Mind and body is not two things, but you can say it belongs to same line, one which is at the grosser point and one which is at the subtle point. Whatever you think, it comes to your body. Whatever you do,
it goes to your mind. So it's very related to each other, and especially what type of language you are using in your speech, it somehow reflects in your body, and not only your body, it reflects to the environment nearby you. If you just want to feel it, you just start speaking wrong words towards yourself. You will feel your body gets sick, some changes. If you speak something wrong to the plants in your house, you will feel it goes effect on the plants. It goes effect on the water, what we use. In the earlier time, many saints and pious people, they don't drink water in those homes where the speaking is not proper, illiterate, abusive language. They don't drink water there. Because when you speak, it is not only you speak, not only you speak. It goes to the environment and always stay there. When I say always, yes, it is always. In thousands and thousands years, always stay there. So we should be very aware of what we speak. That's why saints say, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. You speak such type of language, not only the others, also you feel the peace. ये तराजू तौल तौली के. By your heart first you balance it, check it, whether it is proper or not. Then only you speak. I seen many people, they just speak. Many times people think when they can speak, whatever they can speak is just only shows their talent. The speech shows their dominancy. The speech shows their how they smart in answering. There is a concept of हाजिर जवाब. बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें हाजिर जवाब होना चाहिए. कोई पूछा एकदम तपाक से आंसर, और जितने आप पूछो उससे ज्यादा शो करके आंसर करना कि आप कितने बुद्धिमान हो. आप याद रखना, हाजिर जवाबी कभी भी सही तरीका नहीं है. जब आप मान लीजिए आपसे किसी ने कोई मुश्किल बातें कह दी, एक कंडीशन लेते हैं, टेक एन कंडीशन, कि आपसे किसी ने कोई मुश्किल बातें कह दी या दुखी करने वाली बातें कह दी, किसी ने व्यंग कर दिया, और आपने और उलट करके और भारी भरकम आंसर कर दिया. तो जब आप आंसर करते हो तो आपको लगता है कि मैंने बड़ा भारी भरकम सा आंसर कर दिया. अगला तो कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा, अगला तो चुप हो जाएगा.
वो लाजवाब हो जाएगा, उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, अगला लाजवाब तो हो जाएगा, जवाब तो नहीं दे पाएगा, लेकिन आपकी बातें शूल की तरह उसको गढ़ जाएगा। आपकी बातें वो दिल से लेगा और भूलेगा नहीं। उसको जब भी मौका मिलेगा उसका वो रिवेंज करेगा। ठीक है ना? एक कहावत है, आवत गाली एक है और उल्टत होत अनेक। एक तरफ से गाली आ रही है और अगर आपने उसको उलट के जवाब दे दिया, तो अभी तो एक ही गाली आई थी, अब चार गाली आएगी। और यदि आप इतना डोमिनेंट हो या आपकी बातें इतनी गहरी है कि अगला कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो यह मत समझना कि आपकी जीत हो गई। उसने मन में ले लिया क्योंकि ही कैन नॉट आंसर। वो बाद में कभी आपको आंसर कर देगा। तो कभी भी हाजिर जवाबी इज नॉट द प्रॉपर वे। आई ऑलवेज टीच, do not react but respond. This is always remember as a sutra to you. Do not react. Never react. Always respond. What is the difference between reaction and respond? In reaction, it comes out, मेरा गुस्सा आ गया, वो ऐसा बोल गया, reaction comes out. Reaction comes out with all your विकृति, विकार, your गुस्सा। कहते हैं हम अपने आपे में नहीं थे, we are not in myself। तो आप किस में थे? आप किसी खास वृत्ति में थे, गुस्से में थे। यू आर नॉट योर सेल्फ। और आपने आंसर कर दिया उसको, या आपने कोई ऐसा बिहेव कर दिया। Reaction is always wrong because it not came out from your intellect. It not came out from your peace of your mind. And if it not came from the peace of your mind, if it is not came out from your intellect, it always goes wrong. So don't react. हमको हाजिर जवाब नहीं चाहिए होना चाहिए। हमको धीर गंभीर होना चाहिए। हमको उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरत हो। Rather than हाजिर जवाब, we should be very balanced answer. Avoid the useless worth languages. बहुत लोग की आदत है, हम इतना बोलते हैं, हमें लगता नहीं है कि हमारा बोलना से कोई नुकसान है। पर याद रखना, आपके बोलने से बहुत नुकसान है, फर्क पड़ता है। लोग बोले ही जा रहे हैं, अनाप शनाप कुछ भी। रुक जाओ, बोलना खतरनाक है। भगवान ने दो कान दिए हैं ज्यादा सुनने के लिए, एक ही मुंह दिया कम बोलने के लिए। कम बोलो, स्पीक लेस। थोड़ा थोड़ा कम बोलो। अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें कभी कभी मौन व्रत करना चाहिए, एक दिन का, 2 दिन का। जब आप 1 दिन का, 2 दिन का मौन व्रत करेंगे, यू विल सरप्राइज 90% वी नीड नॉट टू स्पीक। 90% टाइम हम लोग यूं ही बोलते हैं, उसका कोई जरूरत ही नहीं है। वी नीड नॉट टू से दोज थिंग्स, दोज वर्ड्स। यू कैन इजिली रिमूव योर 90% ऑफ योर टॉक। जरूरी नहीं है बहुत बोलना, जरूरी नहीं है हर बात का जवाब देना। आपकी बातें कॉस्मोस में जा रही है, आप जो कह रहे हो ये बातें अंतरिक्ष में जा रही है। इसीलिए बहुत हाजिर जवाब होना, तुरंत बहुत सारा आंसर कर देना, बिना एडवाइस मांगे ही एडवाइस देते रहना, बिना किसी मतलब के बीच में कुछ भी बोलना, ये हमें बंद करना चाहिए।
जितनी जरूरत हो उतनी ही बोलो, चुप रहो, सुनो, ज्यादा देखो, ऑब्जर्व करो, लिसन. We have two eyes, 2 ears. More and more listen and more observe. और कम बोलना है. जब जितना जरूरत है एकदम उतना ही बोलना है. Then you will be more natural. फिर एक क्वेश्चन मिनल जी का और भी है. हाउ कैन आई कंट्रोल माई स्पीच. इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है. कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज है. वी शुड डू सम टाइम मौन व्रत. मे बी Sunday or any days when you have not compulsion to speak. Those days, if you make yourself silent, then you will learn how to control. That is the only way. Now, your second question is, on Eklavya and Dronacharya, how idol transfer knowledge to him. Does it correlate to Yog Darshan? एकलव्य और द्रोणाचार्य, ये महाभारत का ऐसा प्रसंग है जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत आदर्श है. जिन लोगों को कहानी ठीक ठीक याद नहीं है, मैं याद दिला दूं कि एक समय की बात है जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आते हैं और द्रोणाचार्य से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका शिष्य हो जाए. वो उनसे धनुर्विद्या चाहते हैं और द्रोणाचार्य मना कर दिए. तो उन्होंने द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बना लिया और वो साधना किए, धनुर्विद्या सीखे. Now here what the thing is that Dronacharya was not there to teach Karn. Then how Karn learn without or with only the idol? How can the idol teach? ये सवाल कुछ ऐसा ही है जैसे लोग मूर्ति पूजकों के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ क्वेश्चन करते हैं. मैंने कई दफे सुना ये क्वेश्चन. यू हिंदूज वर्शिप आइडल्स, मूर्ति, स्टैचूज. डज रियली स्टैचू कैन डू समथिंग फॉर यू? Really, statue can give you the blessings, the idols. याद रखना, यहां पर ये मूर्ति एक माध्यम बनता है. ऑफ कोर्स मूर्ति नहीं पढ़ा सकता धनुर्विद्या. मूर्ति मूर्ति है, चाहे वो लकड़ी की बनी होगी, मिट्टी की बनी होगी, पत्थर की बनी होगी, वो हिल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता है. लेकिन एक मूर्ति माध्यम बन सकता है. भगवान की मूर्ति माध्यम बन जाती है आपको और परमात्मा को जोड़ने के लिए. कोई कृष्ण की मूर्ति कृष्ण ही नहीं है, कोई भगवान का शिवलिंग भगवान शिव ही नहीं है, लेकिन वो माध्यम बन सकते हैं. वो माध्यम बन सकते हैं आपको और शिव को मिलाने में. क्योंकि हम शिव की तो पूजा नहीं कर सकते, वो तो यहां सामने है नहीं. भगवान विष्णु, भगवान देवी दुर्गा वो सामने में नहीं है, वो द्रोणाचार्य की तरह छिपे हुए हैं. एकलव्य नहीं देख सकता द्रोणाचार्य को.
नॉट अवेलेबल, तो उसने मूर्ति बना दी उनकी। जैसे कि हम सभी करते हैं, हम सभी एकलव्य की तरह ही हैं। हमने मूर्ति बना ली और हम मूर्ति की पूजा करते हैं। ये सोच के पूजा करते हैं कि हम जब मूर्ति की पूजा करेंगे तो मेरी आवाज परमात्मा तक जाएगी। मुद्दा ये नहीं है कि वो मूर्ति एक दिन बोलने ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि मूर्ति एक दिन सीधे खड़ा ही हो जाएगा कि चलो तुमने मेरी बड़ी पूजा करी। लेकिन हाँ, उस मूर्ति के माध्यम से हम आवाज परमात्मा तक पहुंचाते हैं। और ये कैसे होता है? मूर्ति का रहस्य क्या है, विज्ञान क्या है? जब हम किसी आइडोल को सामने में रख करके हम कोई विद्या सीखते हैं, तो वो आइडोल, वो मूर्ति आपके और उसके बीच में एक ब्रिज बन जाते हैं। ये मूर्ति का रहस्य है। इस रहस्य को हिंदुओं ने ढूंढ लिया। आपने कभी देखा है वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं तो एक पुतला बनाते हैं और उस पुतला में कुछ निडल्स डालते हैं। अभी सुना होगा आप लोगों ने, कहानियों में पढ़ा होगा। कुछ तांत्रिक लोग ऐसा ब्लैक मैजिक करते हैं। वो पुतला बनाते हैं, पुतला में निडल करते हैं, और जब वो निडल करते हैं तो जिनका पुतला बनाते हैं उसको दर्द होता है। और ये केवल भारत में नहीं ऐसा है। ये विद्या भारत से ज्यादा, भारत से बाहर फेमस है। यानी कि वो पुतला जो था वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा था उस आदमी से, जिस आदमी का पुतला बना है। कोई एक विज्ञान है जो शायद पश्चिम समझ नहीं पाया कि ये मूर्ति की पूजा ये हिंदू इतने सालों से क्यों कर रहे हैं। हजारों वर्षों से ये मूर्ति पूजा क्यों हो रही है। हमने उस विज्ञान को ढूंढ लिया कि मूर्ति एक कनेक्शन का माध्यम हो सकता है। और हमने मूर्ति कला विकसित की। मूर्ति बना करके उस आदमी को हम उसमें विजुलाइज करते हैं। और जब हम अपनी चेतना को उस पर प्रोजेक्ट करते हैं तो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होता है। आप सुने होंगे कि जब मंदिरों में मूर्ति को लगाया जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक बड़ा उसका एक रिचुअल होता है। उसमें प्राण डाले जाते हैं। प्राण डाले जा सकते हैं। प्राण किसी में भी डाल सकते हो आप अपने कोई भी किताब, कॉपी, पेन, कोई सामान में भी प्राणवान प्राणवान बनाया जा सकता है। असंभव नहीं है। उसे प्राण डाले जा सकते हैं। और ये प्राण जब उसमें हम डालते हैं तब वो सिग्नल सिस्टम तैयार हो जाता है। ये कला भारतीयों ने सीख लिया। किसी वजह से भारत के ऋषियों ने ये सिद्धि सीख ली कि किसी भी निर्जीव वस्तु को प्राणवान कैसे बनाया जाए। और जैसे ही हम किसी मूर्ति को प्राणवान बनाते हैं तो वी डेवलप दैट कनेक्शन। हम उस कनेक्शन से हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं, जिसके सिग्नल्स परमात्मा तक जाते हैं या जिसकी मूर्ति बनी है उस तक जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मूर्ति से द्रोणाचार्य एकलव्य को धनुर्विद्या सिखा रहे थे मूर्ति के माध्यम से। उस मूर्ति से वो आवाज भी सुन रहा था। उस मूर्ति से धनुर्विद्या के गुण सीख रहा था वो। क्योंकि जिसकी मूर्ति को वो प्राणवान किया वो उसके ज्ञान से सीधे जुड़ गया। उसको पता भी नहीं होगा द्रोणाचार्य को
द्रोणाचार्य को पता भी नहीं हुआ कि उसके ज्ञान को कोई देख रहा है, सीख रहा है। लेकिन एकलव्य सीखने लगा। आप अगर ये प्राण विद्या सीख लेते तो किसी तस्वीर से, किसी मूर्ति से आप किसी अमुक व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। अमुक व्यक्ति को अपनी बातें टेलीपैथ कर सकते हैं। पैरासाइकोलॉजी में हम लोग टेलीपैथ सिखाते हैं जब, तो टेलीपैथी में ये पार्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू मेक द प्राण विद्या, हाउ टू जस्ट सेंड योर थॉट्स टू अदर माइंड। आप अपने अपने थॉट को दूसरे के दिमाग में कैसे ले जाते हो या वहां से कैसे लेते हो। एंड दिस इज द प्राण विद्या टेक्निक विच वी लर्न फ्रॉम आवर एंशिएंट ऋषि। तो ये संभव है कि आप किसी की मूर्ति बना करके आप उससे जुड़ जाओ, आप किसी की तस्वीर बना करके उससे जुड़ जाओ। आप उड़ीसा में सुने होंगे कि वहां पर जो लोग भगवान से जुड़े हैं उनको सपने आते हैं और वो इस जंगल में ये लकड़ी और उस लकड़ी से वो जगन्नाथ की मूर्ति बनाते हैं। मानो वो लकड़ी उसके साथ कनेक्शन में है। गो एंड लिसन द स्टोरी ऑफ जगन्नाथ टेम्पल एंड देयर आइडल्स। दिस इज फुल ऑफ मिरेकल्स। कोई निर्जीव वस्तु निर्जीव नहीं है, बस उसका कॉन्शियसनेस डॉर्मेंट है उसमें। फर्क इतना ही है हमारे में कि हमारे में कॉन्शियसनेस अलाइव है, डोमिनेंट है, और निर्जीव चीजों में वो डॉर्मेंट है, राइट। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। हर चीज प्राण से ही बनी है। इसीलिए कोई द्रोणाचार्य की मूर्ति से एकलव्य धनुर्विद्या सीख लेता है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमारी एंशिएंट ऋषि, हमारी एंशिएंट परंपरा रही है। हमने पत्थरों को पूजा है, हमने पहाड़ों को पूजा है, हमने नदियों को पूजा है, हमने वृक्षों की उपासना की है। हमने कम्युनिकेट किया है जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ, हवा और पानी के साथ। वेस्ट में लोग इस बात को नहीं मानते थे, कहते ये हिंदू मूर्ख है। अब रिसर्चेज आ रहे हैं कि आपके पानी में हजारों साल का इतिहास छिपा हुआ है। अभी पानी पे जो वाटर हैज मेमोरी का जो रिसर्चेज 4 साल पहले सामने आया है, वो तो दुनिया में चौंका देने वाला है। पानी को सब पता है। आप यहां के पानी, अपने घर के पानी को, जो आपके घर की बात है वो मेरे घर के पानी को पता है। आप अपने घर में क्या कर रहे हो मेरे घर का पानी बता सकता है कि आप यूएस में बैठ करके क्या कर रहे हो। द वाटर नोज, ऑल वाटर आर कनेक्टेड। हम तो सोच रहे थे ये पानी तो ये H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसको क्या मालूम। पानी को सब पता है। जीवन में आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, द वाटर नोज एवरीथिंग। इट कलेक्ट्स ऑल योर मेमोरीज। 70% of water is there inside your body, and the water is connected to all water of the world, the globe. So आप कभी भी छुपे नहीं होते हो। आप ऐसा मत सोचो कि आप छुपे हुए हो। The air watching you, observing you, the water watching you, observing you,
all the memories are get printed there. ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब एक प्रश्न मैं ले लेता हूं सिद्धार्थ मोहन जी का। सिद्धार्थ जी ने पूछा, वृत्ति और व्याधि में क्या फर्क है? वृत्ति और व्याधि में क्या फर्क है? वृत्ति जैसे समुद्र की लहरें होती है, अगर चित्त समुद्र है तो वृत्ति उसकी लहरें है। वृत्ति क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, जटिल भी है, सरल भी है। ये जटिल वृत्तियां व्याधि को उत्पन्न करती है। वो आपके ज्ञान में विकार पैदा करती है। तो वृत्तियों से व्याधि पैदा होती है, व्याधियों से वृत्तियां नहीं होती, वृत्तियों से व्याधियां पैदा होती है। तो वृत्तियां व्याधियों की जनक है या जननी है। वृत्तियां अगर क्लिष्ट होती जाएंगी तो उतनी ही व्याधि हमारे भीतर उत्पन्न होने लगेगा। तो व्याधियां यूं कह लो कि वृत्तियों का एक्सटेंशन है। अगर आप वृत्तियों को कंट्रोल करते हैं तो व्याधि अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अगर किसी व्याधि को आप जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको उससे संबंधित वृत्तियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो वृत्तियां कंट्रोल होगी तो व्याधि भी कंट्रोल होगी। ठीक है, तो हम लोग अब वापस योग सूत्र पे लौटे। यदि किसी के मन में और कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हाथ रेज करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आप पूछें, योग सूत्र के आधार पर हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग पिछले दिनों में क्या देखे उसको एक बार मैं शेयर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरे बाद इनको दोहराएं। पहला सूत्र लगभग हम जो 17वां सूत्र है वो हम लोगों ने देख लिया था। आज कोशिश करेंगे कि 18वां और 19वां सूत्र भी देखें। तो आप मेरे पीछे 2 बार बोलिएगा, मैं एक बार बोलूंगा, आप मेरे पीछे 2 बार उसको रिपीट करना। 17वां सूत्र लगभग हम लोगों ने देख लिया, आज 18वां और 19वां सूत्र आगे भी देखेंगे। वितर्क विचारानंदा स्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञातः। बहुत अच्छा। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः। बहुत अच्छा। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम।
बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने देखा पिछली बार संप्रज्ञात समाधि में वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अभी आगे भी इसको अध्ययन करेंगे। आप मत सोचो कि मैं भूल गया सारा जो गुरुजी पढ़ाए। कौन है, ग्रहित कौन है, ग्राह्य क्या है ना। और वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चार समाधि हमने पढ़ी। इस चार समाधि में हमने देखा कि वितर्क संप्रज्ञात वो संप्रज्ञात जिसमें हमें विराट विश्व, पंचीकृत विश्व का सामना हम लोग आगे करते हैं। और विचार संप्रज्ञात में जब उसकी सूक्ष्मता में जाते हैं, आनंद संप्रज्ञात जब हम एक हो जाते हैं उसके साथ, हमारे और साक्ष्य में दूरी खत्म हो जाती है। और जब मैं भी नहीं बचता हूं, केवल हरि रह जाते हैं, जब साक्ष्य रह जाते हैं, केवल होने का भाव रह जाता है, तो फिर वो अस्मिता संप्रज्ञात है। तो आज आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं तन मात्रा और महाभूत। पिछली बार कुछ लोगों ने तन मात्रा और महाभूतों पर प्रश्न किया था कि तन्मात्रा और महाभूत क्या है और हम उसको कैसे समझें। तो हम तन्मात्रा और महाभूत को हम आज समझेंगे। मैं फिर से एक व्हाइट बोर्ड खोलता हूं। ये व्हाइट बोर्ड आप लोग को दिख रहा है? जी गुरु जी, दिख रहा है। ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसको कहते हैं हम लोग तन्मात्रा। और महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसको, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को तन्मात्रा कहते हैं। और आकाश, वायु, अग्नि को महाभूत कहते हैं। ठीक है, आप सबको दिख रहा है ये? जी दिख रहा है। हम्म। अब जब सृष्टि बनती है और जब तामसिक अहंकार से तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यहां से देखो दो हिस्से बट रहे हैं अहंकार से। एक जो दृष्टा है, जो शब्द को सुन सकता है, सुनने की शक्ति, और शब्द, आवाज। ठीक है।
स्पर्श होने की शक्ति और स्पर्श, रूप यानी दृश्य और देखने की शक्ति। तो तन्मात्रा और ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है शक्तियां जो ग्राह्य है, जो ग्रहण करती है, जो लेती है, जो ग्रहिता है। और ग्राह्य क्या है? जिसको लिया जाए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। नाक गंध को लेता है, तो नाक में जो सूंघने की शक्ति है वो हो गई ज्ञानेंद्रिय, और जो गंध है वो हो गया तन्मात्रा। तो यहां से दो चीजें, अहंकार ने दो चीजों को उत्पन्न किया, अहंकार ने दो चीजों को पैदा किया। जो तामसिक अहंकार है, एक ज्ञानेंद्रिय और एक उसका विषय। हम लोग इसको विषयी या विषय भी कह सकते हैं। एक हम और दूसरा जिसको हम ग्राह्य कर रहे हैं, है ना। सूंघने की शक्ति और गंध, तो ज्ञानेंद्रिय अलग हो गया, सात्विक अहंकार से निकला वो अलग हो गया, वो एंटिटी हो, ग्रहित्री हो गया। और ग्रहण क्या कर रहे हैं? हम गंध को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये दो वहां से अलग अलग होते चले गए। तो शब्द निकल के आया, स्पर्श निकल के आया, रूप निकल के आया, रस निकल के आया और गंध निकल के आया। अहंकार ने दो अलग अलग कर दिया, एक देख रहा है और एक दृश्य है। अहंकार तक सब आनंद ही आनंद था, आनंद संप्रज्ञात समाधि थी, एक ही था मामला सारा। और अहंकार के बाद तामसिक अहंकार ने तन्मात्राओं को निकाल दिया, जो दृश्य बन गया, जो स्पर्श बन गया, जो रस बन गया, जो गंध बन गया। और इधर सात्विक अहंकार ने वो बना दिया ज्ञानेंद्रिय, जो उनको देख रहा है, उनको ग्रहण कर रहा है, जो ग्रहित्री है। चलो यहां तक तो समझ में आई बात। अब इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे ये महाभूत कैसे आ गए बाहर? इस प्रोसेस को कहते हैं पंचीकृत या क्वांटुप्लिकेशन। कहते हैं कि शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई। बृहदारण्यक उपनिषद में, ये उपनिषदों में पंचीकरण बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि शब्द से, बृहदारण्यक उपनिषद में है, शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, वाइब्रेशन से कॉस्मोस बना, वाइब्रेशन हुआ और उससे सृष्टि बनी, शब्द हुआ और आकाश हुआ, एक ओम की ध्वनि जैसा शब्द हो गया और सृष्टि बन गई। ध्वनि से, आवाज से ये अंतरिक्ष बनता चला गया, फैलता चला गया। जैसे एक बार आप आवाज करते हो तो आवाज दूर तलक जाती है, उसी तरह ओंकार ध्वनि हुई और अंतरिक्ष बनता चला गया, दूर तक उसकी वाइब्रेशन फैलती है और फैल ही रहा है। विज्ञान ये मान रहे हैं कि अंतरिक्ष फैल रहा है, अंतरिक्ष रुका नहीं है, अंतरिक्ष अभी भी फैल रहा है। एक बार आवाज हो गई तो फैलता ही जा रहा है। तो शब्द आकाश को उत्पन्न करता है। दूसरा कैलकुलेशन है, अभी ये एक मत है, ऐसे कई मत है, अभी हम मैथमेटिक्स पे भी आएंगे, पर अभी आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। दूसरा है स्पर्श। स्पर्श किससे बना? स्पर्श वायु और आकाश से मिलकर बना। ये दोनों से मिलकर के स्पर्श बना। स्पर्श का मतलब होता है जो चीज आपको छूती है, जो चीज आपके करीब आती है, जो चीज आप महसूस करते हैं, फील करते हैं। ये केवल टच, बॉडी टू बॉडी टच को स्पर्श नहीं कहते हैं। आप कहते हैं ना कि आवाज दिल को छू गया, कहते हो ना, ऐसा मार्मिक दृश्य देखा कि
एकदम छू गया मेरे को। तो छूने का मतलब ऐसा बॉडी का टच करने का नहीं है कि टच कर उसको स्पर्श हो गया। स्पर्श का मतलब केवल फिजिकल टच से नहीं है। कोई भी चीज जो आपको छू जाती है, चाहे वो हृदय को छूती हो, चाहे दिमाग को छूती हो, तो स्पर्श जो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज की फीलिंग कराती है, अनुभव कराती है। तो ये, एक मिनट में जरा सा इरेजर इरेजर, अभी इसको आप ऐसे रहने दो, मैं बताता हूँ आगे। हम्म। तो स्पर्श का संबंध वायु से है। वायु, वायु केवल वायु वो नहीं जो स्पर्श करता हो, वायु हमारे भीतर सिग्नलिंग सिस्टम करता है, वायु अनुभव कराता है। इसलिए हम लोग प्राण को वायु कहते हैं, प्राण वायु, प्राण वायु की तरह है। हम जितने भी अनुभव करते हैं अपने जीवन में, हम जितने भी अनुभव करते हैं अपने जीवन में, वो प्राणों की वजह से करते हैं। तो प्राण एक वायु की भांति है, इसीलिए प्राण वायु कहते हैं। हर प्रकार के अनुभव प्राण के वजह से होता है। तो स्पर्श का संबंध वायु से है, जो सिग्नल दे, जो अनुभव कराए, जो कुछ फील करा दे आपके भीतर कि कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है, पहले से अभी कोई परिवर्तन है, पहले और अभी में कुछ अंतर हुआ, तो वो अंतर स्पर्श की वजह से, कुछ अनुभवों की वजह से हुआ। तो वो चीज है। अब ये रूप का संबंध अग्नि से है। अग्नि रूप क्या है? रूप का मतलब आकार, कलर्स, कोई चीज जो आपको, कोई आकृति विच हैज सम लिमिटेशंस, वो रूप अग्नि तत्व को उत्पन्न करता है। अग्नि एनर्जी है जो किसी स्पेस में फॉर्म कर। चलिए मैं इसको दूसरे दूसरे तरीके से समझाता हूं, तो ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आए। लेट मी एक्सप्लेन इन अदर वे कि ये कैसे बना, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मैं कहता हूं आकाश, मैंने बताया आकाश किससे बना है? आकाश बना है शब्द से। फिर मैंने बताया वायु, वायु किससे बना है? शब्द प्लस स्पर्श से। और अग्नि, अग्नि किससे बना है? अग्नि बना है शब्द, स्पर्श और रूप। चलिए पहले इसको समझते हैं। वायु में शब्द भी है, वाइब्रेशन भी है, कुछ स्पंदन है, कुछ हो रहा है, और स्पर्श यानी अनुभव भी हो रहा है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एंड यू कैन फील इट, दैट इज वायु। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन मीन्स शब्द, कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ स्पंदन हो रहा है। ये वाला पैर टेढ़ा ना इधर। और स्पर्श, यू कैन फील इट, ऑल्सो यू कैन फील इट। तो शब्द और स्पर्श वायु को बनाता है। लेकिन जब शब्द और स्पर्श किसी खास कंडीशन आकृति को क्रिएट कर दे, शब्द स्पर्श और रूप, समथिंग इज हैपनिंग, गोइंग ऑन, वाइब्रेशंस, स्पंदन, समथिंग इज देयर, स्पर्श विच यू कैन फील and which has some shape and size and color,
which has some conditioned limited construction, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका, कुछ ज्योमेट्रिकल आधार है उसका, तो वो रूप कहलाता है। तो जब शब्द, स्पर्श और रूप ये तीनों मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अग्नि। अग्नि को हम लोग समझते हैं जैसे आग जला दी वही अग्नि है, वो अग्नि नहीं है। केवल अग्नि जिसको आप, जो समथिंग इज हैपनिंग, जिसका आप अनुभव कर सकते हो, और जिसकी कोई आकृति, जिसका कोई शेप, साइज एंड कलर्स हो, विच हैज सम मास, विच हैज सम शेप, which has some size, which has some colors, which is conditioned with all physical signs, तो अग्नि और फिजिकल हो गया। अब अग्नि को जब आप गहरे में समझोगे तो अग्नि बहुत सारे भेदों को खोलती है। अग्नि में तीन महान चीजें हो गई। वो शब्द जिससे स्पेस की उत्पत्ति होती है, आकाश की उत्पत्ति होती है। अग्नि में वो स्पर्श जिससे हमें कोई चीज का अनुभव, किसी का ज्ञान होता है। और वो फिजिकल फॉर्म में दिख जाना, रूप, वो अग्नि है। इस डेफिनेशन से जितने भी चीजें हैं आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, वो अग्नि के रूप हैं। साइंस इस बात को मानता है कि हर चीज का एक बर्निंग पॉइंट होता है। दो लकड़ियों को आपस में रगड़ो, उपनिषद कहता है कि उस लकड़ी में वो अग्नि छिपी हुई थी, जिसको रगड़े जाने से प्रकट हो गई। उपनिषद कहता है कि उन लकड़ियों में अग्नि थी, जिसको रगड़े जाने से प्रकट हो गया। उन पत्थरों में अग्नि छिपी हुई थी, जिसको रगड़ जाने से वो प्रकट हो गया। ये उपनिषद की भाषा है। विज्ञान की भाषा क्या है? लोहे का एक खास मेल्टिंग पॉइंट है, एक लेवल पे वो अपनी आकृति छोड़ देता है, वो पिघल जाता है। मोमबत्ती बड़ी आसानी से मोम पिघल जाता है। जो आइस है, आइस बड़े आसानी से मेल्ट हो जाता है, उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम जब थर्मोस्टेट को पढ़ते हैं, जब हीट को पढ़ते हैं, तो हीट क्या है? अग्नि क्या है? अग्नि वो थर्मोस्टेट है जिसमें हम अपनी आकृति को चेंज करते हैं। बर्निंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसमें कई सारे ऐसे स्टैंडर्ड साइंस ने बनाए कि खास टेम्परेचर पे वो अपनी आकृति को बदलता है, वो अपने स्वरूप को बदलता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो सकता है। जब हम रूपांतरित होते हैं तो वो अग्नि है। जैसे हम कहते हैं कि जठराग्नि, भूख लगती है, आप खाना पचाते हो, जो पाचक अग्नि होती है। 5 प्रकार की अग्नि हमारे शरीर में काम करती है। आप खाना खाए और खाना पच गया, खाना अलग फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि आपके पेट ने कुछ ऐसा रस छोड़ा, एक डाइजेस्टिव जूस छोड़ा, जो कि आपके खाने की आकृति को बदल दिया। वो खाना कार्बोहाइड्रेट्स में टूट गया, फ्रुक्टोज, सक्रोज, ग्लूकोज सब में टूट गया, रूपांतरण हो गया उसका। जब भी रूपांतरण होता है तो वो अग्नि होता है। अग्नि का काम है रूपांतरण करना। अग्नि का मतलब होता है रूपांतरण। आपको मालूम है ये सन्यासी लोग गेरू वस्त्र क्यों पहनते हैं? गेरू वस्त्र अग्नि का प्रतीक होता है, आग का प्रतीक होता है। जब वो गेरू वस्त्र पहनते हैं, इसका मतलब कि वो रूपांतरित हो रहे हैं। अब वो बदल रहे हैं, वो बदल गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। अब वो पहले जैसे न रहे, अब वो बदल गए। वो अग्नि बदलाव का, रूपांतरण का सूचक है। बात आ रही समझ में? इसीलिए हम अग्नि को रूप लेते हैं। अग्नि आकृति है, अग्नि उसका शेप एंड साइज है। अग्नि को केवल आप
जो माचिस जला के मोमबत्ती मोमबत्ती या दिया का वो जो दिख रहा है पीला रंग का, वही अग्नि नहीं है। आपका भूख लगना अग्नि है। आपका किसी चीज को किसी शेप एंड साइज में दिखना अग्नि है। किसी चीज को हम जब फील करते हैं कि अमुक चीज अमुक है, ये डायरी है, ये कॉपी है, इस कॉपी का जो शेप साइज एंड जो भार हमें महसूस हो रहा है, कलर महसूस हो रहा है, दैट इज अग्नि। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, तो जिस भी चीज की पूजा करेंगे, आकृति की पूजा करेंगे, वट एवर हु ऑक्युपाई सम स्पेस, द मैटर विच ऑक्युपाई सम, दैट मैटर, जिस भी मैटर की हम उपासना करते हैं वो अग्नि ही होता है। इसीलिए वेदों में अग्नि की पूजा सबसे पहले की गई है। वेदों में, ऋग्वेद में पहली पूजा किसकी है? अग्नि की है। हाँ, क्योंकि अग्नि ही है जिसकी वजह से कोई चीज है, कोई आकृति है। अब इसको थोड़ा सा और हम आपको विज्ञान में ले जाते हैं। लाइट की स्पीड, अगर हम, मैंने पहले भी कहा कि अगर हम इस कॉपी को लाइट के स्पीड से फेंक दें 3 लाख माइल प्रति सेकेंड, तो इसकी आकृति खो जाएगी। इसकी आकृति ये ऐसा, इसका चेहरा ऐसा नहीं रहेगा, ये फोटोन्स ऑफ लाइट में बदल जाएगा। तो प्रकाश क्या है? अग्नि है। प्रकाश और उसका जो वेलोसिटी है वो बदल देता है चीज के साइज शेप को, रूपांतरण हो जाएगा। ये कॉपी लाइट बन जाएगा। तो समझो अग्नि को, अग्नि गहरा विषय है। जितना वायु और आकाश गहरा है, उतना भी अग्नि भी गहरा विषय है। जल, अभी जल क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप और रस। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस है। और उसी तरह से पृथ्वी क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रस क्या है? अब ये 3 चीज समझ में आ गया। शब्द, स्पर्श, रूप, ये कोई चीज का आकृति है। ये रूप और अग्नि का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, आपको शब्द का वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको स्पर्श समझ में आ गया, आपको रूप समझ में आ गया। अब आपको मैं बताता हूं रस का मतलब क्या होता है। रस उसकी विशेषता है, रस उसके लक्षण है। ये पानी ठंडा है तो कहेंगे इसका रस ठंडा है। ये पानी गर्म है तो कहेंगे इसका रस क्या है? गर्म है। ये कपड़ा बहुत मुलायम है तो उसका रस क्या है? मुलायम होना है। उसकी विशेषता, उसका एट्रीब्यूट, उसका गुण, उसका लक्षण, उसको बोलते हैं रस। किसी भी चीज का गुण, उसका लक्षण, उसका एट्रीब्यूट। अरे बात समझ में? ये क्या है? ये है रस। और हम लोग क्या लेते हैं? सबका रस लेते रहते हैं, सब में रस लेते रहते हैं, संसार में रस लेते रहते हैं। और गीता ने कहा भाई रस छोड़ो, रस लेना छोड़ो। गीता में क्या कहा कि रस लेना छोड़ो? हम उस सब के एट्रीब्यूट्स को पकड़ते रहते हैं, गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। वो विशेषता है किसी की, उसको कहते हैं रस। आज समय हो रहा है, मैं किसी और दिन रस को बताऊंगा। रस की साधना होती है, रस से ही संसार में रुचि है।
आपको लगाव है, आपको जुड़ाव है क्योंकि रस है, आपको अटैचमेंट है क्योंकि रस है। रसी नहीं, रस विहीन हो जाएगा, नीरस हो जाएगा वो। नीरस, रस ही नहीं है इसमें। अब अंतिम में आज जाते जाते गंध भी बता के जाते हैं। गंध क्या है? चलो, आपने शब्द समझ लिया, देयर इज समथिंग। स्पर्श समझ लिया, विच यू कैन फील इट। रूप समझ लिया, इट हैज सम शेप एंड साइज। रस समझ लिया, इट हैज सम एट्रीब्यूट्स। देन व्हाट इज द गंध? अब गंध क्या है? गंध है योर नीड टू टेक इट। आपकी जरूरत जो आप उसको पकड़ के रखते हो। पृथ्वी में ग्रेविटी होती है जो पकड़ के रखती है, आपको नीचे बांध के रखती है। गंध मतलब वो गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण, वो आकर्षण। गंध का मतलब होता है आकर्षण, जो आपको बांध के रखती है, रोक के रखती है। अगर पृथ्वी रोक के ना रखे तो सब बिखर जाए। पृथ्वी सबको बांध के रोक के रखती है। ये इसका अर्थ होता है गंध। रस और गंध को हम कभी और विस्तार से बताएंगे। ये सारे भेद, सृष्टि के सारे भेद इसी में है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जिन रस जिस एट्रीब्यूट, जिस जुड़ाव की बात करता है, जिस विशेषता की बात करता है, गंध आपको उसकी जरूरत बना करके उसको थामे रखता है। जल को कौन थामता है? पृथ्वी थामता है। जल को कौन दिशा देता है? पृथ्वी देता है। देखो, अगर नीचे ढलान हो तो जल बह के नीचे जाएगा ना, ऊपर रहेगा पहाड़ तो जल ऊपर तो नहीं जाएगा। तो पृथ्वी जल को दिशा देता है, बांध के रखता है। तो जो विशेषण को, विशेषता को बांध के रखे, जोड़ के रखे, उसे गंध कहते हैं। ऐसे में से जो खाली जो स्मेल आता है, गुलाब का स्मेल या परफ्यूम का स्मेल, उसको गंध कहते हैं? नहीं। तन्मात्रा बहुत गहरी बात है। तन्मात्रा को तुम हल्के में मत लो कि ये हल्की चीज है। ये बहुत गहरी बात मैं कर रहा हूं आपसे, तो उस पर थोड़ा मनन करना आप लोग। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अभी तो मैंने ये सिंपल पंचीकरण बताया है। पंचीकरण के और भी फार्मूलीज हैं। मैं आगे आने वाले समय में पंचीकरण के और भी फार्मूलीज बताऊंगा, लेकिन ये सबसे सरल और सामान्य फार्मूला है। लेकिन इससे पहले आज आपने समझा आकाश और शब्द में क्या रिलेशन है, वायु और स्पर्श में क्या रिलेशन है, अग्नि और रूप में क्या रिलेशन है, जल और रस में क्या रिलेशन है, और पृथ्वी और गंध में क्या रिलेशन है। आज आपको ये बात क्लियर हो गई। तो हम समझते हैं कि आज बहुत गूढ़ बातें आपने सीखी है। अब तक हम जिसको गंध कहते थे, जिसको अग्नि कहते थे, जिसको वायु कहते थे, जिसको आकाश कहते थे, जिसको रूप रस कहते थे, सारी बातें आज मैंने बदल दी। दर्शन की गहराइयों में आपको ले गए। यही योग सूत्र है। जब आप इसके गहरे में उतरेंगे तब इन शब्दों का सही सही अर्थ समझ पाएंगे। अब मैंने कहा था कि जब किसी वितर्क संप्रज्ञात में तन्मात्राओं का पता चलता है तो वो विचार संप्रज्ञात हो जाता है। जब किसी देवता के हमें दर्शन होते हैं और उस देवता की सूक्ष्मता का पता लगता है तो विचार संप्रज्ञात हो जाता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा हम किस रूप रस गंध की बात कर रहे हैं। जब हम रूप रस गंध को समझते हैं तब हम विचार संप्रज्ञात समाधि में उतरते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? एक छोटा सा प्रश्न लेकर आज का हम ये कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। तो कोई भी आप जो चाहते हो कि प्रश्न पूछना पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सत्र को यहीं पूर्ण करेंगे। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? गुरुजी, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। जो ज्ञानेंद्रियों का फिर जो कहते हैं कि वो सतोगुण से उत्पन्न हुई हैं, और वैसे बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो
इन पंच महाभूतों से बनी है, तो वो अगर तामसिक गुणों से बना है और ये अलग है, तो वो कोरिलेटेड कैसे है? रिलेटेड है तो दोनों अहंकार से ही। हाँ जी। चाहे वो तामसिक अहंकार है, चाहे वो राजसिक अहंकार है, चाहे वो सात्विक अहंकार है। और रजस हम दोनों को जोड़े रखता है, सत्व और तमस को जोड़े रखता है। तो हम जुड़े हुए तो हैं, और हम में ये तीनों होता है, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे कर्मेंद्रिय हो, चाहे ये तन्मात्रा हो। क्योंकि हम महाभूतों से हमारा शरीर बना है, तो तमस तो आ ही गया, तामसिक अहंकार तो आ ही गया हमारे अंदर। हमारे अंदर ज्ञानेंद्रिय है, तो हमारे अंदर सात्विकता आई गई। तो हमारे अंदर सत्व और रजस और तमस तीनों वर्तमान होता ही होता है। आप किसी को हटा नहीं सकते। ये आपकी प्रकृति है, ये आपके नेचर में है कि आप रजस सत्व और तमस से बने हुए ही हैं। कि आपका शरीर पंच महाभूतों से बना है और आपका अंतःकरण ज्ञानेंद्रिय से बना है, मन से बना है। तो ज्ञानेंद्रिय और मन के होने से सत्व आपके भीतर है, और ये शरीर होने की वजह से तमस आपके भीतर में है। वो दोनों ही अहंकार के रूप में आपके भीतर में है, और इससे आप मुक्त नहीं हो सकते हो। ये ताजीवन ता उम्र बना ही रहेगा, है ना। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि तमस तमस में एकीकृत हो जाए, डबल बॉन्ड बना ले, अनमेनिफेस्ट हो जाए। रजस रजस में मिल जाए, वो अनमेनिफेस्ट हो जाए। सत्य सत्य में अनमेनिफेस्ट हो जाए। अस्मिता संप्रज्ञात लग जाए, विवेक ख्याति हो जाए। तभी ही आप इनसे मुक्त होगे, लहरें शांत, वृत्तियां शांत होगी। वरना ये तो बना ही रहेगा हमारे भीतर, ये तो रहेगा ही, सदैव रहेगा हमारे भीतर। ठीक है सिद्धार्थ जी। जी जी जी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना गहरे विषय पे चर्चा करने में। आपको पता नहीं है कितना आनंद आता है, नहीं आता है, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं इन विषयों पर चर्चा करता हूं, तो आई फील वेरी एनलाइटन्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे। खूब सारे प्रश्न पूछिए, जितने प्रश्न पूछ सकते हैं आप पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। इसमें धन्यवाद गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।